on, let's worship. Thank you, Lord. Worship you, Lord. Thank you. Glorious Lord. Emmanuel. God is with us. Blessed living word. Come on, lift it up. Jesus, you are glorious Lord. Come on, once again, Jesus. Name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Come on, people of God, sing this night. Tell him, blessed Redeemer. Come on, sing, sing, sing. अपने घरों में उस यीशु के नाम को पुकारो. Name above all names, Lord. Glorious Lord, Emmanuel, God is with us. Blessed Redeemer, blessed Redeemer. Worship you this night, Lord. We give you glory, Lord.
for your anointing and your grace, Lord, this night. धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे अभिषेक के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर Because in धन्यवाद। your grace, in your power, we can do everything your word says. कि तेरे सामर्थ्य में तेरे अनुग्रह में हम सब कुछ कर सकते हैं, तेरा वचन कहता है। Your word says that we can do everything in Christ Jesus. तेरा वचन कहता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मसीह यीशु में। Tonight is a night of prayer. आज की रात है प्रार्थना की रात। Spirit of God has spoken me that tonight we have to pray for many people. परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा है कि मैं परमेश्वर के लोगों के लिए आज की रात प्रार्थना करूं, बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करूं। Jeremiah 29 verse 12 says like that. यिर्मयाह उसका 29 उसके 29 का 12वां वचन ये कहता है 29 I 12 will preach a short word on that and then we will be praying for many people. मैं एक छोटे से संदेश को अभी दूंगा और मैं फिर प्रार्थना में ही जाऊंगा। Before I am going to share that beautiful word of God, let us just will pray and will worship and then we'll enter in preaching. हम उस संदेश में जाने से पहले बस कुछ देर के लिए थोड़ी सी प्रार्थना आराधना करेंगे और हम बस प्रार्थना में Because that is जाएंगे, the way to enter in prayer. क्योंकि वो तरीका है प्रार्थना में जाने का। Oh hallelujah. ओ हालेलुया। Come on Suzanne, let us worship. आइए हम उसकी आराधना करें। जीसस blessed Redeemer, living God, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no
संहिता 86 का 10 कहता है कि वो हमारे बीच में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है और उसके जैसा कोई नहीं है। आइए मेरे साथ में हम परमेश्वर की प्रेज में जाएं, हम प्रभु के लिए स्तुति आराधना करें। ये गीत कहता है कि वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई जीत। मैं चाहूंगी कि मुझे सब देखने वाले मेरे साथ में एक मन और एक आत्मा की प्रार्थना में हम प्रॉफिटिकली इस प्रेज एंड वर्शिप को लें। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह कर ना पीछे हटने वाला खुदा,
Thank you, Jesus. We worship you once again. धन्यवाद यीशु, हम आपकी फिर से आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। We give you glory and we give you praise, Lord, हम आपको सारी स्तुति और महिमा और आपको आराधना आदर देते हैं, because you deserve all the glory, Lord. क्योंकि आप ही सारे आदर और सारी महिमा के योग्य हैं। I have a wonderful word of God for you this night. मेरे पास आज की रात बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर का वचन आज आपको देने के लिए है। People are saying like, why God don't hear our prayer, why He don't reply our prayer. परमेश्वर के लोग ऐसा कहते हैं कि क्यों Many people they say like that. सभी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, क्यों इतना देर हो रहा है, क्यों हमारी प्रार्थना Many times they complain that He don't listen my words, He don't listen my cry. कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि वो हमारी नहीं सुनता, वो हमारे आंसुओं को नहीं देखता। I have a good news for you. आज मेरे पास आपको देने के लिए एक शुभ समाचार है। You are absolutely wrong. आप पूरी तरीके से गलत हैं, Because I am here to tell you as a man of God that He reply your prayers and He hears your cry. क्योंकि मैं परमेश्वर का जन होने के नाते आज आपको कहने आया हूँ कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Because we don't serve any deaf and dumb God. क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो कि गूंगा या बहरा हो। He has His ears by which He hear and He is having a beautiful mouth by which He reply our prayers. उसके कान बहुत खूबसूरत कान है जिससे वो सुनता है, उसका खूबसूरत मुंह है जिससे वो बोलता है। Someone shout hallelujah. कोई तो पुकार करता है हालेलुया, Oh hallelujah. हालेलुया। A wonderful verse written in Bible, Jeremiah, book of Jeremiah 29 verse 12. यिर्मयाह की पुस्तक के 29 के 12वें आयत में ये लिखा है, Then you will call on me. तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, You will call on me. तुम मुझको पुकारोगे। Second step, come. जो दूसरा जो स्टेप आता है Come वो बोलता है आ, and pray. आकर मुझसे प्रार्थना करो। And fourth step, I will listen to you. और चौथी बात ये कहता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। There are steps of prayer. ऐसे जो स्टेप्स होते हैं कदम प्रार्थना होते के हैं। कदम होते हैं। It's not only simply you are coming, we are coming and we are just simply praying. It's not like that because we are coming in front of the King of Kings and the Lord of Lords. ऐसा नहीं है कि हम आ रहे हैं ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी आ रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे परमेश्वर की जो कि राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु उसकी प्रार्थना How you will go before a king? कैसे आप राजा के सम्मुख आओगे, How we will come before the King Almighty? कैसे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आएंगे। When we are going before a king, we need to take some steps. जब हम राजा के सामने आते हैं तो हमको कुछ कदम लेने पड़ते हैं। I tell you a wonderful story of a blind man. मैं एक बहुत ही खूबसूरत आपको एक कहानी बताऊंगा, एक अंधे व्यक्ति। He was blind. His name was Bartimaeus. वो अंधा था, उसका नाम बर्तिमाई था। He was blind from eyesight, but he was very clever. वो आंखों से तो अंधा था मगर बहुत बुद्धिमान था। He fulfilled all the steps which is mentioned in Jeremiah 29 verse 12. उसने ये सब कुछ किया जो कि यिर्मयाह के 29 के 29 के 12वीं जो आयत में लिखा है, वो सब कुछ कदम पे कदम उसने किया। When you will read the Gospel of Mark and many places it is mentioned like that when Jesus came from that Jericho area. बाइबल की मत्ती मरकुस में ये लिखा है कि जब जैसे ये वो यरीहो की तरफ जाने लगे थे, There was a blind man sitting and begging. वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति था जो कि बैठा था और भीख मांग रहा था। He heard the voice. उसने आवाज सुनी And Bible says he started calling the name of Jesus. Jesus, the Son of David, have mercy on me. और वो बाइबल बताती है कि वो आवाज सुन के पुकार कर कहने लगा, चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। He did the first step mentioned in Jeremiah 29 verse 12. इसने ये पहला कदम किया जो कि यिर्मयाह के 29 की 12वीं आयत में जो लिखा है, You will call upon me. कि तुम मुझको पुकारोगे। Then Bartimaeus, he was calling Jesus. बर्तिमाई यहाँ पर यीशु मसीह को He पुकार रहा है। he was calling upon वो Jesus. यीशु के नाम को पुकार रहा He है। was praising the name of वो Jesus. यीशु के नाम को स्तुति दे He रहा was है। shouting, Oh Jesus, Son of David, have mercy on me. वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, Have mercy on me. मुझ पर दया कर, Have mercy on me. मुझ पर दया कर। And when Bible says when Jesus heard, Jesus stopped there. और बाइबल कहती है कि जब यीशु ने ये सुना और यीशु वहाँ रुक ही गए And second step was taken. और फिर दूसरा कदम लिया गया। Jesus called him. यीशु ने उसको पुकारा, Jeremiah बुलाया। 29:12 says, Come. यिर्मयाह का 29 का 12 कहता है आकर, आओ. आओ।
And Jesus called Bartimaeus. और यीशु ने बर्तिमाई को आवाज देके बुलाया, And he came. वो आया, He was connected with the Lord. वो यीशु मसीह से जुड़ गया। Before we pray, we need to do one thing. We need to call His name. प्रार्थना करने से पहले हमें चाहिए कि हमें उसके नाम को We पुकारें। need to give glory to His name. We need to honor Him. हमें चाहिए कि हम उसके नाम को महिमा और उसके नाम को आदर दें। We need to glorify Him. Oh, you are the King of Kings and you are the Lord of Lords. हमें चाहिए कि हम राजाओं के राजा को महिमा दें कि तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, And we need to glorify Him. और हमें चाहिए कि हम उसको महिमा दें। Second thing we need to do, we need to connect with Him. जो दूसरा जो कदम लेना है वो है कि हमें उसके साथ जुड़ना है। That means to say, He said, come. Where to come? इसका मतलब है कि वो आना, कहाँ आना? Coming to the church or coming to the home, coming to the street, where He is asking you to come. कलीसिया में आना, किसी स्ट्रीट में आना, कहाँ वो आने को बोल रहा है? He is asking you and me to come in His presence. वो आपको और मुझसे कहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आए। He is telling, come in my presence. वो कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में आओ, Come in my anointing. मेरे अभिषेक में आओ। He is calling us. वो हमें पुकार रहा है। First you will call Him पहले चाहिए कि हम उसे पुकारें, and then He will call us. फिर वो हमें पुकारेगा, We are in a connection with each और other. फिर हम एक दूसरे की में जुड़ जाएंगे, We are connected with each other. We come in the presence of Jesus. और हम एक साथ जुड़कर प्रभु की यीशु की उपस्थिति में आ जाएंगे। And then Bible says, come on, pray. और फिर बाइबल कहती है कि आओ प्रार्थना करो। Bartimaeus called. बर्तिमाई ने बुलाया, Then Jesus called Bartimaeus. फिर यीशु ने बर्तिमाई को बुलाया। Bartimaeus and Jesus came close. बर्तिमाई और यीशु मसीह एक दूसरे के नजदीक आ गए। And then Jesus asked, what do you want me to do for you? और फिर यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Come on, tell me, what do you want me to do for you? आइए वो बताइए कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? Tonight when we will call His name, आज की रात जब हम यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे, tonight when we will call His beautiful name, we will glorify Him. जब हम उसके प्यारे नाम को पुकारेंगे और उसके नाम को महिमा देंगे, He will be rejoiced. वो बहुत खुश होगा। And He will call us in His anointing, in His presence. That means to say, when you will worship Him, you will feel His presence. और फिर वो अपनी उपस्थिति में, अपने अभिषेक में हमें पुकार के बुलाएगा और हम उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। As you worship at your home, you will be feeling the presence of the Holy Ghost. जैसे कि आप अपने घर में आराधना करते हैं और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, You will be feeling the presence of living God. आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, And you enter in His presence. और आप उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर लेते हैं। And when you enter in His presence, और जब आप उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर लेते now He is asking, come on, tell me, what do you want me to do for you? हैं, तब फिर आप उसकी उपस्थिति में आके उससे वो आपसे पूछता है कि क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी उपस्थिति में क्या करूं, उस उपस्थिति में क्या करूं? And Jeremiah 29:12 says, then you will pray. और यिर्मयाह 29:29 का 12वां वचन ये कहता है, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे And I will hear. और मैं तुम्हारी सुनूंगा। He did not say कि मैं उधर मुंह कर लूंगा, but He said, I will hear. वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। He is not saying that I will turn my face that side, वो ये नहीं कहता कि मैं अपने चेहरे को उस तरफ कर लूंगा, or I will close my ears. वो ये नहीं कहता कि मैं अपने एक कान को बंद कर He लूंगा, is not saying that I will not reply you. वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा, He is not saying, wait, I will reply your prayer. वो ये नहीं कहता कि रुको मैं अब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देता हूँ। Jeremiah 29:12 says, you will pray, I will reply, I will hear. यिर्मयाह का 29 का 11वां वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। The moment you will pray, I will hear. जिस वक्त तुम प्रार्थना करोगे उसी वक्त मैं तुम्हारी सुनूंगा। Oh, someone shout hallelujah. पुकार कर रहे हैं, हालेलुया। Bartimaeus said, I want to see. बर्तिमाई कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ। Bartimaeus says, I want to see. बर्तिमाई कहता है कि मैं देखना चाहता And हूँ। instantly, Bible says, Jesus said, by your faith be healed, and he got his sight back. और वो विश्वास के द्वारा उसी वक्त चंगा हो गया और बाइबल कहती है कि उसकी दृष्टि आ गई। Oh, hallelujah. हालेलुया। So this is the God whom we serve. इसलिए ये परमेश्वर है जिसकी सेवा हम करते हैं। We need to glorify him, we need to call upon him. हमें चाहिए कि हम उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को पुकारें। And then we need to come in his glory, in his presence, in his anointing. फिर हम उसकी महिमा में, उसकी उपस्थिति में, उसके अभिषेक में आ जाएं। And then we ask, we pray what we want. और तब हम उससे प्रार्थना करेंगे और उससे पूछेंगे जो हमें चाहिए। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. And Bible says, I will hear it. और बाइबल कहती है कि मैं उनकी सुनूंगा। And Bible says in verse 13 also, और बाइबल के उसके 29 के 13वें वचन में भी कहता तुम है, मुझे ढूंढोगे, you will seek and you will find me. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, Because तुम संपूर्ण मन से मुझे मेरे पास आओगे. तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, Because you will be coming to me with all of your heart. क्योंकि तुम पूरे संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। So tonight, people of God, we need to come with
full of our heart to Jesus. ये आइए परमेश्वर के लोगों, आज हमें चाहिए कि हम पूरे मन के साथ, संपूर्ण मन के साथ उसकी उपस्थिति में आए। And He will reply our prayers. वो हमारी प्रार्थना का जरूर उत्तर देगा। He will hear our और prayers. वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। But He is asking us to come near Him. मगर वो ये बोल रहा है कि हम उसके नजदीक आए। He is not saying like, come on, you pray from a long distance or you pray. He wants a fellowship with us. वो ये नहीं कहता कि तुम दूर से ही बैठ के प्रार्थना करो, मगर वो चाहता है कि हम उसकी संगति में आए। Because the one whom we love, we want that person must be close to us. जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं, उसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे नजदीक रहे। Oh, hallelujah. ओ हालेलुया। Come on, people of God, let us pray tonight. आइए परमेश्वर के लोगों, हम मिल के प्रार्थना करें। Let us pray tonight. आइए मिल के प्रार्थना We करें। will be spending some time in prayer, and now I am giving you some time. You can type your prayer request on the comment section, and we will be praying by your names. कुछ समय बाद प्रार्थना में बिताएंगे और आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और हम आपकी इसी वक्त हम सब मिल के प्रार्थना करें। This is the time when we are going to pray for people. ये वो समय है जब हम परमेश्वर के लोगों के लिए मिल के प्रार्थना करते हैं। Come on, you can type your prayer request in comment section, and we will be praying for you. आइए आप अपनी प्रार्थना निवेदन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम मिल के एक मन की प्रार्थना में एक साथ मिल के प्रार्थना करें। We are in a family, हम एक परिवार में हैं and we will be praying for each other. और हम एक दूसरे के लिए मिल के प्रार्थना करेंगे। And the Bible says there is power in unity. और बाइबल कहती है कि एकता में सामर्थ है। Bible says when 120 they gathered in a room in a unity, there was power. बाइबल कहती है कि जब प्रेरितों के काम में 120 जने एक कमरे में इकट्ठे थे तो वहाँ सामर्थ आ गई। When they prayed together, my God, Bible says the power of the Holy Ghost came upon each and everybody. वो बाइबल कहती है कि जब वो मिलकर एक मन की प्रार्थना कर रहे थे, एक रूम में इकट्ठे होंगे, तो बाइबल की प्रार्थना परमेश्वर ने स्वर्ग से सुन ली। And the fire came upon each and every one of और them. बाइबल बताती है कि अग्नि हर एक पर आकर उतर गई। That means to say the reply of prayer came of everyone. इसका मतलब है कि सभी की प्रार्थना का उत्तर उस वक्त मिल गया। It is not like that the reply of one or two came. इसका यहाँ पर ये नहीं लिखा था कि सिर्फ एक दो की प्रार्थना सुनी गई थी। It is not mentioned like that the fire came upon one person or 20% or 30%. Bible says that everybody, 120 of them, they received the anointing of Holy Ghost like a fire upon them. बाइबल में दे रखा है कि वहाँ पर ऐसा नहीं था कि 20% या 30% लोगों में की ही प्रार्थना सुनी गई और उन्हीं को अग्नि अभिषेक मिला। बाइबल कहती है कि 120 जने जितने के जितने थे, सभी की प्रार्थना का उत्तर और अग्नि अभिषेक होकर सबको अग्नि मिली। When that heaven was open, it opened upon everyone. जब स्वर्ग खुल गया तो सबके लिए खुल गया। Previously, when heaven was open, it was open upon Jesus. पहले जब स्वर्ग खुला था वो तो सिर्फ यीशु मसीह पे खुला था। And there was a prophecy of God that He is my begotten Son and I love Him. और ये आकाशवाणी स्वर्ग से हुई कि ये मेरा इकलौता प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। But when Jesus died and when Jesus rose and when Jesus went up to the heaven, लेकिन जब यीशु मसीह मर गए और मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग में गए, and after when He went up to the heaven, और जब वो स्वर्ग में से उतर के गए, and when He went up to the heaven, जब जब स्वर्ग वो पे स्वर्ग में गए, गए, first time when the heaven was open, the fire came upon each and everybody. Bible says those who were waiting with the promise of Jesus. बाइबल कहती है कि सब के सब पे अग्नि अभिषेक उतरा क्योंकि वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। They were waiting for the promise. उसकी प्रतिज्ञा की बात जो रहे थे। वो उस प्रतिज्ञा की बाट जो रहे थे। Oh, hallelujah. हालेलुया। Come on, let us pray now. आइए मिलके हम प्रार्थना करें। Come on, you can write your prayer request and we are praying for you right now. आइए आप अपने प्रार्थना निवेदन को लिख सकते हैं और हम मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। We will be praying for a few more minutes. हम और कुछ सेकंड्स और प्रार्थना में बिताएंगे। Once again, we are praying for Sister De Silva's son now. हम फिर से सिस्टर डे सिल्वा के बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We are praying for you, sister, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं बहन। and we want this boy to speak. और हम चाहते हैं कि ये बच्चा बोलने लगे। We want this boy to speak the name of Jesus. In the name of Jesus, we command. चाहते हैं कि ये बच्चा यीशु के नाम को पुकारे, यीशु मसीह के नाम में। I speak this Rabba again, and I command the soul of Rabba to speak in Jesus' mighty name. मैं यीशु के नाम में रब्बा की आत्मा को आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में बोलने लग जाए। As the Son of Living God, Jesus said, "Iftiha," I speak upon this boy, Iftiha. Let that tongue loose now and come on, speak it. Speak the name of Jesus. यीशु के नाम में
मैं इस बच्चे की जुबान पे इब्तिहा बोलता हूँ कि वो यीशु मसीह के नाम में बोलने लग जाए। Sister, if this boy is in front of you, come on, show this boy this screen and let him hear my voice. बहन, अगर ये बच्चा अगर आपके नजदीक में है तो आप उसको ये स्क्रीन दिखाएं, ये मोबाइल में अब उसको उसके नजदीक में लेकर आए, उसके सामने लेकर आए। I command, Rabba, I command you in the name of Jesus. Come on, you speak and open your mouth and speak the name of Jesus. This is the order of a living God in Jesus' mighty name. Speak the word Jesus. Name I command. यीशु मसीह के नाम में बोलने लग जाओ, यीशु के नाम में वो गुग्गो को बोलने की शक्ति देता है। Come on, pray. परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया कि तू बहरों को सुनने की और गुग्गो को बोलने की शक्ति देता है प्रभु। हालेलुया, ये बच्चा तेरी महिमा के लिए बोले, तेरी महिमा के लिए। प्रभु ने कहा है तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। Thank you, Lord. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर राई के दाने का भी विश्वास होगा तो परमेश्वर पहाड़ को भी हटा सकता है। आइए मिल के हम एक मन की प्रार्थना करें। Sister Seema, you are writing. आप यही वर्ड बोल रहे थे कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। God loves you so much, my dear sister Seema. परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। And this is what I heard from Lord before I came to preach. 45 minutes before I heard this thing. ये 45 मिनट्स पहले ही मुझे ये वचन प्रीच करने से पहले, यहाँ आने से, ऑनलाइन प्रेयर में आने से पहले ये वचन मुझे मिला। The Spirit of Lord may be told exactly for you, Sister Seema. ये परमेश्वर की आत्मा ने एग्जैक्टली आप बहन सीमा आपके लिए ही ये वचन दिया था कि मैं ये बोलूं। And I am here to prophesy for you. और मैं यहाँ हूँ कि मैं ये भविष्यवाणी आपको करूँ। You are like a broken vessel. आप एक टूटे हुए पात्र के समान हैं। And that vessel is in the hand of a potter, the master. और ये जो पात्र है वो यीशु मसीह के हाथ में है, एक कुम्हार के समान। And when you are in the hand of Lord Jesus, और जब आप परमेश्वर के हाथ में हैं, you don't need to worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। You don't need to worry. आपको चिंता करने की Sister Seema, Lord's eyes are upon you and His ears are upon you. सिस्टर बहन सीमा, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर के कान आपके ऊपर हैं और वो लगे हुए हैं। And He knows your heart and He knows every cry which you have cried. और बहन सीमा, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है और आपके हर एक आंसुओं को देखा है। He wants you to come close to Jesus. वो चाहता है कि आप यीशु मसीह के नजदीक आओ। I pray for Sister Seema right now. मैं इस वक्त सिस्टर बहन सीमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। I pray for her broken heart. मैं उसके टूटे हुए हृदय के लिए प्रार्थना करता I हूँ। pray for her broken situation. मैं उसकी हर एक टूटी हुई परिस्थिति के लिए प्रार्थना Bible करता हूँ। says, call upon me. बाइबल कहती है कि मेरे नाम को पुकारो। Call upon me. मेरे नाम पे पुकारो। हम विपरीत परिस्थिति के अंदर ही उसके नाम को पुकारते हैं। बर्तिमाई called his name in an unfavorable situation. बर्तिमाई ने विपरीत परिस्थिति में यीशु मसीह के नाम को पुकारा। Peter called in विपरीत परिस्थिति when he was sinking on that water. पेत्रस ने भी विपरीत परिस्थिति में यीशु के नाम को पुकारा जब वो डूब रहा था। And God works in that विपरीत, in that unfavorable और condition. यीशु और परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में भी काम करता है। I command every situation of Sister Seema to be turned around and every unfavorable condition, let it come in the favor of Sister Seema in Jesus' mighty name I speak. यीशु मसीह के नाम में बहन सीमा के जीवन में हर एक विपरीत परिस्थिति को अच्छी होने के लिए आज्ञा देता हूँ और पिता परमेश्वर का फेवर उनके जीवन में बोलता हूँ। I speak the favor of God and I speak the favor of man upon Sister Seema Tirki. मैं सिस्टर सीमा के जीवन में परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह को बोल देता हूँ। And this is the word of God for you that He knows, Sister Seema Tirki. Spirit of Lord is telling me I preach Jeremiah 29:12. बहन सीमा, मैंने यिर्मयाह का 29 का 12वां वचन पढ़ा है। But I speak the Jeremiah 29:11 also upon you. और मैं आपके जीवन में यिर्मयाह 29 का 11वां वचन भी आपके जीवन में बोलता हूँ। I preach 12 and I preach 13, but I am speaking verse 11 upon Sister Seema Tirki and everybody those who are watching me right now. मैंने भले ही यिर्मयाह 29 का 12वां और 13वां वचन पढ़ा और प्रीच करा, मगर मैं इस वक्त में जो देखने वाले जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स अभी इस वक्त हमारे को जो देख रहे हैं उन सब पे भी यिर्मयाह 29 की 11 वर्ड्स को डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ। It says like this, क्योंकि यहोवा की ये वाणी, thus says the Lord, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। The Spirit of God is saying, this is the voice of a God.
ये परमेश्वर की वाणी है। that I know the plans what I have planned for you. वो कहता है कि मैं जानता हूँ जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। Maybe sister, you are not knowing what the plan God has planned for you. Maybe brother, you are not knowing what the plan God has planned for you. But God says, I know the plan what I know the plan what I have planned for you. हो सकता है भाई आपको नहीं मालूम कि आपकी क्या परमेश्वर की आपके प्रति क्या योजना है। बहन आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर की योजना आपके प्रति क्या है, मगर परमेश्वर आप सब के लिए उसकी योजना है और वो सब योजनाओं को जानता है। God knows, that is more important. परमेश्वर जानता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आपको और मुझे केवल इतना समझना है कि God Himself is saying that planning what I know for you, I plan for you, it is not to harm you, but to bless you and give you future and hope. और ये जो योजना वो हमारे लिए बनाता है, वो बोलता है कि मैं जानता हूँ जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई वो हानि की नहीं बना, लाभ की और अंत में तुम्हारी आशाओं को मैं पूरी करूंगा। और आपको और मुझे यही जानना काफी है कि वो योजनाएं हमारे लिए हानि की नहीं है। दैट प्लानिंग, दैट योजना इज नॉट टू हार्म अस, बट दैट योजना इज टू ब्लेस अस एंड टू प्रॉस्पर अस। इसलिए बनाई गई है कि वो योजना हमारे आशीष की हो और हमारी संपन्नता के लिए हो। And he is the God and the Father too. That's why he said, आप बोलेंगे तो मेरी प्लानिंग का क्या, तो मेरी योजनाओं का क्या, मेरी कल्पनाओं का क्या जो मैंने बनाया। That's why he said, and I will fulfill your desires at the end. I will fulfill your plan at the end. He said. इसलिए वो कहता है कि मैं अंत में तुम्हारी आशाओं को पूरी करूंगा। Means your plan, your hopes will not be broken, my brother and my sister. मतलब है कि आपकी जो योजना है वो बिल्कुल भी, आपकी जो भाई और बहन आपकी जो योजना है वो बिल्कुल नहीं टूटेगी। Oh, someone shout hallelujah. कोई तो पुकार कर कहे हालेलुया। Right now I pray for Angel and Sharon. इस वक्त मैं एंजल और शैनन के लिए प्रार्थना Shannon के लिए प्रार्थना करता है। I pray for Angel and Shannon. एंजल और शैनन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। In the name of Jesus, यीशु मसीह के सामर्थ्य I नाम pray में। right now. इस वक्त हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। I bring the family of Pastor Vinod into the blessed hand of Jesus. मैं पास्टर विनोद की परिवार को यीशु के सामर्थ्य और आशीषित हाथों के पास लाता A हूँ। mighty man of God from UP यूपी से एक प्रभु के अभिषेक से सामर्थ्य दास and a wonderful friend of mine. और बहुत ही प्यारे प्रिय मित्र हैं मेरे। I have seen the gifts of the Holy Ghost in his life and in his ministry. मैंने इनके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान और फलों को उनके And I remember exactly, I prophesied few months, few weeks back that God has seen you a faithful man of God and God is going to multiply what you have in your hands. और मैंने पिछले समय में उनके लिए भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर ने तुम्हारी विश्वास योग्यता को देखा है, एक बहुत ही विश्वास योग्य दास हो और परमेश्वर उसकी कटनी को आप अपने जीवन में देखोगे। And you are faithful in little and God is going to make you the honor of more. और परमेश्वर बताते हैं कि आपने थोड़े में आप विश्वास योग्य रहे, आपको प्रभु अधिक में भी और बनाएगा। Right now I pray for your kids in the name of Jesus. इस वक्त मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम I में। want you to put your hands, lay your hands on your kids, pastor. मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथों को अपने दोनों बच्चों के ऊपर रखें। And I command that fever, that cold, that cough to be broken from their life instantly in the name of Jesus. यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि जो कोल्ड जो कफ है वो यीशु के नाम में, जो सर्दी जुकाम है यीशु के नाम में ऐसे टूट के चला जाए। I break the strength of that fever from Shannon and I break the strength of that fever from Angel in the name of Jesus right now. मैं शैनन और एंजल के ऊपर से भी उस बुखार और सर्दी जुकाम के जोर को यीशु के सामर्थ्य नाम में तोड़ देता हूँ। I command that sickness to leave these kids now, right now in Jesus' मैं name. आज्ञा देता हूँ कि ये रोग यीशु के नाम में इन बच्चों को छोड़ के चला जाए। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम And में। I speak the blessing of the anointing of the Holy Ghost on Pastor Vinod's ministry. और मैं यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के अभिषेक को पास्टर विनोद की सेवकाई में बोलता हूँ। In Jesus' mighty name. यीशु के नाम सामर्थ्य नाम में। Thousands of souls be delivered and saved by the ministry of Pastor Vinod in God's kingdom I speak. पास्टर विनोद की सेवकाई में हजारों हजारों आत्माएं बचाई जाएं। In the name of यीशु के Jesus. सामर्थ्य नाम में। I pray for Sister Rita. मैं इस वक्त बहन रीटा के लिए प्रार्थना करता हूँ। She is asking prayer request for her father. वो अपने पिता के लिए प्रार्थना निवेदन लिख रही हैं। I command that kidneys to be healed completely in Jesus' mighty name. मैं आज्ञा देता हूँ कि वो किडनी यीशु के नाम में पूरी तरीके से छक्की हो जाए यीशु के नाम में। Right now we command that the kidneys of Sister Rita's father be healed in Jesus' mighty name. इस वक्त मैं आज्ञा देता हूँ कि बहन रीटा के पिता की किडनी यीशु के नाम में पूरी छक्की हो जाए। Lord,
I pray, renew that completely, मैं Lord. आज्ञा देता हूँ कि पूरी तरीके से वो नई हो जाएं। I command that blood pressure to come in the normal values in Jesus' mighty मैं name. आज्ञा देता हूँ कि वो जो बीपी है वो नॉर्मल वैल्यूज में आ जाए यीशु के In the name of Jesus, यीशु के सामर्थी नाम we में। command that high blood pressure to come in a normal मैं values. आज्ञा देता हूँ कि वो जो ब्लड प्रेशर है वो यीशु के नाम में नॉर्मल हो I जाए। pray for Sister Romita. मैं इस वक्त रोमिता बहन के लिए प्रार्थना करता In हूँ। Jesus' mighty name, I speak the God of Abraham in you, your life and your family. मैं यीशु के नाम में आपके जीवन में अब्राहम के परमेश्वर की घोषणा करता हूँ आप पे और आपके परिवार में। And I pray God is going to give or release a special faith in your life. और मैं आज्ञा देता हूँ कि परमेश्वर आपको एक महत्वपूर्ण विश्वास आपके अंदर बढ़ाए। I sense in my spirit that you need a specific faith for some things to be done in your family. मैं अपनी आत्मा में महसूस करता हूँ कि आपको किसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण विश्वास की आपको जरूरत है किसी हिस्से में। To fulfill some desires of your life in your family. कि आपके जो कुछ इच्छा है जो जरूरत है आपके या आपके परिवार में उसको पूरा करने के लिए। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में। Come on, let us pray for Sister Mary this night. इस वक्त हम मेरी बहन के लिए प्रार्थना करें। We pray for this dear sister. Let a wonderful job come in her way. अब इस प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करेंगे एक अच्छी नौकरी इनके जीवन में आ जाए। In the name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम In the में। name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम I में। pray, Lord, open new doors for Sister Mary. मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की बहन मेरी के जीवन में नए नए द्वार खुल जाएं। In Jesus' mighty यीशु name. के सामर्थी नाम में। In Jesus' mighty यीशु name. के सामर्थी नाम में। Come on, let us pray more. Let us आइए pray मिलकर more. हम प्रार्थना करें। You can type more on your comment section. हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। Come on, Angel. थैंक यू जीसस। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। Jesus, oh Jesus. विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया हालेलुया Come on, Suzanne. हालेलुया। Jesus. धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। Oh Jesus. Blessed Redeemer, Living word. Blessed Redeemer, Living word. Jesus, oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. मिलकर कहें. Jesus. Oh Jesus. Your presence. makes me whole. Jesus, the name above all. आज शाम उससे कहें your name above all name, Lord. Beautiful Savior, Glorious Lord, Emmanuel. God is with us. Is Blessed Redeemer, living word. Come on, Susan, sing again. Jesus, the Name above all names. beautiful Savior, Glorious Lord, Emmanuel. God is with us. Blessed Redeemer, living word. blessed Redeemer, living Once again, thank you, Jesus, for Pastor Vinu call.
फिर से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पास्टर वीनू कॉल ब्रदर भाई के लिए। Thank you for this dear man of God, Lord. I praise you. धन्यवाद पिता परमेश्वर इस प्रिय परमेश्वर के दास के लिए, और हम आपको स्तुति देते हैं परमेश्वर। And we pray for him, for his ministry and for his family. और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी सेवकाई, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते I हैं। pray for a new move of the anointing in his ministry in coming days. प्रार्थना करता हूँ कि नए पवित्र आत्मा के मूव को उनके परिवार में, उनकी सेवकाई I में speak new revelations of the Holy Ghost in his life, Lord. मैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा के नए प्रकाशनों को बोलता हूँ। I speak the new doors to be open in his life and in his ministry. मैं उनके जीवन में, उनकी सेवकाई में नए द्वार खुलने की घोषणा करता हूँ। I pray for the expansion of ministry in his life in Jesus' mighty name. मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु के नाम में उनकी सेवकाई में अब नए द्वार खुल जाएं, एक बढ़ोतरी हो जाए In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में। Manish James, brother, you are blessed and you are healed completely, and God bless your family. मनीष जेम्स ब्रदर, परमेश्वर ने आपको चंगा किया है और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष देता है। I bless you, brother Suresh Masih from Banswara, and actually is in Delhi now. I bless you in Jesus' name. भाई सुरेश मसीह, आप बांसवाड़ा से हैं और इस वक्त अभी आप दिल्ली में हैं। हम यीशु के नाम में आपको आशीष देते हैं। One of the soul that is saved through me, God said. परमेश्वर के द्वारा एक आत्मा मेरे को जो परमेश्वर ने इस्तेमाल करा एक सोल को बचाने के लिए। I give you praise, Jesus, for this wonderful soul. मैं इस प्रिय आत्मा को जो परमेश्वर के द्वारा बचाई गई इस सोल के लिए मैं धन्यवाद करता And हूँ। God made you His servant, His minister, Suresh. I give praise to Jesus for you. और परमेश्वर ने आपको एक अभिषिक्त दास उसका बनाया है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह को इस बात के लिए स्तुति देता हूँ। And I pray that in coming time, Suresh, God is going to increase His anointing upon you. Be careful and be very sensitive for the Spirit of God. मैं ये भविष्यवाणी भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि परमेश्वर आपको आने वाले समय में बहुतायत इस्तेमाल करेगा और आप इस बात के लिए केयरफुल भी, बहुत सचेत और सतर्क भी रहना कि परमेश्वर आपको अभिषेक में बढ़ाएगा। You know the Spirit of Lord is telling me for the servants of God, for pastors, for ministers, including me. परमेश्वर का आत्मा मुझे जोड़कर सारे प्रभु के दासों के लिए ये बात बोलता है। We need to be very careful when the anointing get increase in our life. जब अभिषेक हमारे जीवन में बढ़ता है, हमें उस वक्त बहुत सचेत और सतर्क रहना है। For example, when you drive a car, you drive on 20, 30, 40 speeds, it's okay. देखिए, जैसे जब आप कार चलाना सीखते हैं तो आप 20 या 30 की जब स्पीड में चलाते हैं तो वो ठीक भी है। It's okay. वो ओके रहता है। But when the speed of that car increase to 80 to 100 to 120 to 150, we need to be very careful and we need to focus on the road, on the track. लेकिन जब कार की स्पीड को हम 80 से 90, 100, 120 तक की स्पीड में जब बढ़ाते हैं तब हमें बहुत सतर्क और बहुत अलर्ट होकर चलाना रहता है और हमारा जो नियंत्रण है वो सामने की तरफ बहुत सचेत होकर करना पड़ता है। And we need to focus towards the front mirror. और हमें सामने की तरफ, जो सामने का जो कांच होता है उसकी तरफ ध्यान से देखना भी रहता है। Listen very carefully. बहुत ध्यान से सुने। Listen very carefully. बहुत ध्यान से सुने। This is what the Spirit of Lord is telling me to tell you. यही है जो परमेश्वर का आत्मा इस वक्त मुझे कह रहा है कि मैं आपको कहूँ। जब एक व्यक्ति एक कार चलाता है तो उसके सामने कुछ कांच होते हैं। एक कांच सामने की तरफ में होता है, एक कांच इसके पास में लगा रहता है पीछे देखने के लिए, और 2 कांच लगे रहते हैं दोनों दरवाजों पे। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। मैं हिंदी में कह रहा हूँ जिससे कि आप और अच्छे से समझ सकें। This is what our ministry and this is what our life. ऐसे ही हमारी सेवकाई भी होती है और हमारा जीवन भी होता है। जब हम हमारे इस कार को चलाते हैं, जब इसकी गति बढ़ती है 100, 120, 130, 150 पे जब गाड़ी जाती है तो हमारा ध्यान उस बड़े कांच यानी उस भविष्य की ओर हम देखते हैं, उन चीजों की ओर देखते हैं जो सामने की तरफ आ रहा है। जब हम इस जीवन ओके, ऑलरेडी हिंदी। या लिसन नाउ। साथ में उस छोटे कांच में हम पीछे भी देखते हैं, इधर से भी देखते हैं, उस तरफ के कांच से भी देखते हैं और इस कांच से भी। 3 दिशाओं से हम पीछे के हिस्सों को भी देखते हैं जो पीछे जा रहा है, और एक बड़े कांच से हम सामने की तरफ देखते हैं। व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, जो समझाना आपको चाह रहा हूँ, हमारा फोकस भविष्य की ओर होना चाहिए, पर पीछे जो बातें बीती है उनको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है।
उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना है, उन आश्चर्य कर्मों को भी हमें याद रखना है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में करा है। बट परमेश्वर चाहता है टुनाइट गॉड वांट्स यू टू फोकस ऑन फ्यूचर। मगर आज की रात परमेश्वर चाहता है कि आप सामने की तरफ, सामने के कांच में देख के अपने भविष्य को देखें। योर फोकस शुड बी मोर ऑन फ्यूचर। आपका जो नियंत्रण है वो और ज्यादा होना चाहिए आपके भविष्य को लेकर। ऑफ कोर्स यू कैन सी स्लाइटली बैक साइड में पीछे क्या गया, पीछे क्या गया। देयर आर 3 मिरर्स, 3 अलग-अलग दिशाएं हैं जिससे आप अपने अतीत को देख सकते हैं कि मेरे जीवन में जो घटा, और एक बड़ा मिरर आपके सामने होता है जो आपके भविष्य को दिखाने के लिए रखता है। वन फोकस ऑन वन मिशन। एक ही नियंत्रण है, एक मकसद को लेकर है। I pray for Pastor Eddie मैं पास्टर एडी के लिए भी प्रार्थना from करता हूं, Jalandhar. जो जलंधर से है। In the name of Jesus, I bring your ministry in the mighty hand of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आपकी सेवकाई को यीशु के नजदीक लेकर आता You हूं। know, Punjab is in my spirit. I tell you very clearly. मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पंजाब मेरी आत्मा में बहुत है। Last year I was in Punjab, पिछले साल मैं पंजाब में था। and we are coming back to Punjab. This is a news. This is a news for Punjab that Pastor Robin is coming back with his team to Punjab. मैं पिछले साल भले ही पंजाब में था, लेकिन इस साल में मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं और मेरी टीम के साथ में हम फिर से पंजाब में होंगे। And I have already prophesied this thing when I was on the land of Punjab, and I am prophesying once again this night that Punjab is going to see the biggest power of the Holy Ghost, the biggest move of the anointing of the Holy Ghost in coming days. In Jesus' mighty name I speak. और ये भविष्यवाणी मैंने वहाँ पर रहते हुए, वहाँ पर जो क्रूसेड में मैंने ये भविष्यवाणी भी करी थी कि आने वाले समय में पंजाब अपनी बहुत ही बड़ी सामर्थ को आने वाले समय में देखेगा। Punjab, God is going to visit Punjab in a mighty move. I sense in my spirit. मैं आत्मा में देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि पवित्र पंजाब आने वाली बहुत ही पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ को And महसूस I करता हूँ। pray for Pastor Eddie that you should be, you will be, you must be a part of this mighty move of the Holy Ghost when the God is going to visit Punjab in His mighty move. और पास्टर आईडी में कहता हूँ कि जब ये बड़ा काम होगा तो आपको रहना है उस सेवकाई में। You should be a part of this ministry. सेवकाई के आपको हिस्सा बन के रहना है। I speak these prophetic words upon you मैं ये भविष्यवाणी के शब्दों को आपके जीवन में बोलता हूँ that you should be a part of this mighty revival going to happen in Punjab. कि आप इस बड़ी बेदारी के हिस्से बन के रहे जब ये काम पंजाब में हो। In Jesus' mighty name, यीशु के सामर्थ्य I नाम bless में। your ministry, I bless your church, I bless every work that you do in Jesus' mighty मैं name. आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को यीशु के नाम में आशीष देता हूँ। Oh, hallelujah. ओ हालेलुया। Come on, Susan. परमेश्वर, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus. हालेलुया, हालेलुया। Sister Kavita, we are praying for you. You are from Hyderabad right now. I can see your comment. सिस्टर कविता, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप हैदराबाद से हैं And you are writing about the coronavirus. और आप कोरोना वायरस के लिए ये कमेंट में लिख रही हैं। I have a news for you. The blood of Jesus is more powerful than any virus in this world. यीशु का मैं आपको एक समाचार देना चाहता हूँ कि यीशु का लहू किसी भी वायरस से बहुत सामर्थी है। And you apply the blood of Jesus this night. I, as a man of God, we apply the holy blood of Jesus upon you, and I break the fear in Jesus' mighty name from the life of Sister Kavita. In Jesus' name. और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके ऊपर यीशु का सामर्थी लहू लगाता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि कोरोना बिल्कुल चला जाए यीशु के नाम में, और आपको डर भी ना रहे यीशु के नाम में। And no corona shall touch you in Jesus' mighty और name. कोई कोरोना आपको छू भी ना सके। Everybody, those who are watching, we pray that no corona shall touch us in Jesus' mighty name. और जो भी इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि कोई भी कोरोना आपको किसी को भी ना छू सके यीशु के नाम में। In Jesus' mighty name, we all are under the holy blood of Jesus. हम सब यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थी लहू के अंदर You हैं। cannot see the blood of Jesus. हम यीशु के लहू को देख नहीं You सकते, cannot see the angels of Jesus. आप यीशु के दूतों को नहीं देख सकते। But I tell you, according to Bible, the blood of Jesus and the angels of Jesus are around you and upon you. और मैं ये आत्मा में कहता हूँ कि यीशु का लहू और यीशु के स्वर्गदूत आप सबके नजदीक और आपके करीब हैं। Oh, hallelujah. ओ हालेलुया। This is a mighty God whom we serve. यही परमेश्वर है जिसको हम महसूस करते, जिसकी हम सेवा करते हैं। Yeah. हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on. So before we close the service, we can pray for more. If anybody is writing more prayer requests, so आइए हम इस प्रार्थना में और भी जो कमेंट्स अगर हमको प्रार्थना के निवेदन दे सकते हैं तो आप दीजिए और हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। thank you, हालेलुया। Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। Thank you, Jesus.
प्रभु जितने भी अपने प्रार्थना निवेदन को Thank पिता you, Lord. परमेश्वर, जो इस वक्त हमारे पास जो प्रार्थना निवेदन की लिस्ट आई है पिता परमेश्वर, उन सब प्रार्थना निवेदन को प्रभु तेरे दास के साथ पिता परमेश्वर Thank हम you, Lord. एक मन की प्रार्थना में आते हैं, हमारे सारे Jesus. निवेदन को पिता परमेश्वर तेरी We- वेदी पे रखते हैं, Yeah. Come on, student, pray. तेरी वेदी पे रखते हैं पिता Thank you, Lord. परमेश्वर। प्रभु धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है पिता Amen, परमेश्वर। amen. Thank you, प्रभु Lord. तेरा वचन कहता है कि तू धर्मी की लालसा को पूरी करता Thank you, है पिता Jesus. Yes, परमेश्वर। Lord. प्रभु तू पिता परमेश्वर, तू धर्मी के पिता परमेश्वर, हालेलुया, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, धर्मी का आशा रखने से आनंद मिलता है Thank पिता you, Lord. परमेश्वर। Thank you, Lord. हालेलुया, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है प्रभु। तेरे डरमियों को किसी भली वस्तु की Thank you, त्रुटि Jesus. नहीं हो सकती प्रभु। Thank you, Lord. तू ही हमारी सूर्य और ढाल है, और Thank you, Lord. प्रभु तूने कहा है कोई भी अच्छी वस्तु प्रभु में जो मेरे से खरी चाल चलते हैं, उनसे मैं कोई भी अच्छी वस्तु रखना Amen, छोड़ूंगा। amen. Yes, Lord. जितनी भी भलाई की बातें तूने हमारे से कही पिता परमेश्वर, Thank यीशु you, के Lord. नाम में प्रभु, जैसा तेरा वचन जोशुआ 21 का 41 कहता है कि Yes, वो Lord. भलाई की जितनी भी भलाई की बातें तूने इजराइल के घराने से कही Thank वो you, Lord. सब की सब पूरी हुई। Amen, amen. प्रभु तूने कहा है मांगो कि तो दिया Shabbat जाएगा, Rakhamana ढूंढोगे तो तुम Sante पाओगे, Rekiria. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Yes, Lord. क्योंकि जो कोई मांगता उसे मिलता Yes, है, Jesus. जो कोई ढूंढता वो पाता है, Yes, जो Lord. खटखटाता है उसके लिए खोलता है, खुला Yes, जाता Lord. है। पिता परमेश्वर यीशु के नाम में इन तमाम मेरे भाई बहनों के लिए मसीह में जिन्होंने प्रभु बहुत Amen, विश्वास Lord. से जो Yes, प्रार्थना Lord. दी है प्रभु, जो प्रार्थना दी है प्रभु, हालेलुया, हमने पढ़ी है मेरे राजा परमेश्वर, पूरा कर दे प्रभु जी, क्योंकि तू सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। Thank you, Lord. इन सब की प्रार्थना को तू पूरा Thank you, कर Lord. प्रभु। प्रभु बच्चों की जो आशीष मांग रहे हैं उन्हें बच्चों की आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रभु जो पिता परमेश्वर घर में एक चमत्कार चाहते हैं प्रभु, जैसे रब्बा बोलने लग जाए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, नौकरी में आशीष हो जाए प्रभु जी। पर अनीता को प्रभु जी एक आशीष मिले, जो भी डिजायर उसके पूरा कर। पल्लवी की आशीष दे प्रभु जी, जो वो डिजायर मांग रही है पिता परमेश्वर, फेवर दे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हनी के जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा परमेश्वर, इन सब के जीवन में तू अद्भुत कर मेरे राजा परमेश्वर। जो आंख ने ना देखी, जो कान ने ना सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, वही तूने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार कर रखी प्रभु। मैं तेरे अभिषेक दास के साथ प्रभु, हम पूरी रॉबिन जोसेफ मिनिस्ट्री पिता परमेश्वर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि तू सब कुछ पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। So you may be, some of them you are thinking that on what we are praying. इसलिए आप सोच रहे होंगे कि हम किस पे ऐसे प्रार्थना कर रहे I'll हैं। show you one paper here. We are praying for 2,747 people. हम 2747 47 people. लोगों के लिए प्रार्थना। Here we have mentioned the names of prayer request. यहाँ हमने प्रार्थना निवेदन जैसे लिख रखे हैं, We have written the names. हमने उनके नाम लिखे हैं, जितनों ने हमें प्रार्थना निवेदन दिए हैं उनके नाम। And here you can see 2,751. 2751 प्रार्थना निवेदन की लिस्ट में नाम आए हैं। Those who asked prayer for them, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन हमें लिखकर भेजे हैं, and we are praying for them. और हम उनके लिए मिलकर प्रार्थना कर रहे And my Bible says, हैं। और मेरी बाइबल कहती if है, two of you agree for anything, मेरी बाइबल कहती है कि जब कोई भी दो जन किसी बात के लिए एक मन होते हैं, if two of you comes in one mind, जब कोई भी दो जन एक मन हो जाते हैं, whatever किसी you बात को will लेके, bound on earth, it will be bound in heaven, and whatever you will lose on earth, it will be loosed on heaven. जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। So at your home you are praying, and on our place we are praying. इसलिए जैसे कि आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे So हैं। there you are praying, and here we are praying. इसलिए आप अपने घर में वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और हम यहाँ प्रार्थना So कर रहे हैं। we both are coming one mind and in one spirit. इसलिए हम दो जन, जैसे आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा में दो जन एक मन हो गए हैं अपनी And प्रार्थना में। it will be done from heaven. और वो यीशु मसीह के नाम में जरूर पूरा होगा। It will be done from heaven in Jesus' वो name. स्वर्ग की ओर से यीशु के नाम में पूरा होगा। So thank you once again for joining us. इसलिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे को ज्वाइन
If you are first time on our Facebook page, so you can like and follow our Facebook page. इसलिए जो लोग भी पहली बार हमारे फेसबुक पेज को, पास्टर रॉबिन जोसेफ पेज को पहली बार अगर आप हमें देख रहे हैं, You can like and follow, so whenever we will come online, and that time you can get a notification. इसलिए आप हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लीजिए कि जब अगली बार हम फेसबुक लाइव होते हैं तो आप हमारे फेसबुक लाइव को जरूर देख लें, उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Also, you can send your prayer request on WhatsApp on our WhatsApp number mentioned on Facebook page. हमारे फेसबुक पेज में हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो जिसमें कि सब लोग प्रार्थना निवेदन भी दे रहे हैं। आप आपका नाम लिख के आपके प्रार्थना निवेदन, आपकी जगह का नाम भी भेज सकते हैं। हम प्रार्थना And we will be praying for you और continuously. हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। Once again, thank you so much. फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। I speak a blessed weekend on your life and our life. मैं आपके जीवन में और हमारे जीवन में एक आशीषित सप्ताह को बोलता हूँ In Jesus' name. यीशु के सामर्थ्य See you next week once again. में। फिर से हम आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह। God bless you. Shalom. आपको प्रभु आशीष दे। शालोम।